Everyone, welcome back to the channel. So yeah, I started a series of backend series here, and today we deep dive into the world of backend security development using Express.js and Node.js. So in this series, I will explore the fundamental of building a backend application, and basically focusing on the one of the crucial topic, one of the favorable topic, how we can hash the password in the database. So we will learn in this today video how we can hash the password in the backend and the database, and we also deep dive into the making password even more stronger, like even more safer from the hackers by using the Gensalt. Gensalt basically provided by the Bcrypt, and Bcrypt is a tool that basically hash our password. So I will give you in a simple tutorial what I built here. So there is a simple backend application that have login route, and the another one is sign up route. This one is a sign up route and this one is the login route. Inside the database, I established the connection to our database, and inside our users, there I created a simple schema for that. And if I save them and started the server, clear npm run dev, and if I started the server using the nodemon, I used nodemon for that. And if I go to the Postman basically it is a tool that basically test your application. So there I make a two route, sign up route and login route. If I click on there I paste the path of our sign up route that I have created in our application, and inside this body row, inside this I pasted a simple username and a password. And then if I send the request from here, so now you can see user created successfully, user registered successfully. And now if I go to the login, and that's our login route basically. And if I click on the send button, here I paste the same username and the same password that I used in the sign up route. And if I click on the send, so now you can see login successfully with our user details. So if I go to the database now, I use the Mongo database here, and if I refresh now, so now you can see there is a folder name hash password. There is a database called hash password. Inside this there is a user, and if I refresh them, so now you can see this is the username and this is the password that we have hash in our backend, and this is the Gensalt. This is Gensalt and this is Bcrypt that hash the password in our database, and this is the username. So in this series we have learned about everything: how to hash password, how to use Gensalt, how to establish the connection using the mongoose from our database, and how to make routes, how to make schema. So we have learned everything from starting. So let's start the video. पे मैंने एक फोल्डर स्ट्रक्चर बना लिया है, ठीक है। एक डेटाबेस का फोल्डर बना लिया, एक मॉडल का फोल्डर बना लिया जिसके अंदर user.js है जहाँ पे हमारा स्कीमा होगा, ठीक है। db वाले फोल्डर के अंदर db.js है जहाँ पे डेटाबेस का सेटअप होगा, एंड राउट्स वाले फोल्डर के अंदर हम अपना कंट्रोलर मेन कोड लिखेंगे जो भी लॉगिन और साइन अप का राउट है, ठीक है। ये फोल्डर स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे .env फाइल है, यहाँ पे जो हमारा पोर्ट है किस पोर्ट पे रनिंग होना चाहिए, यहाँ पे बस पोर्ट का नाम लिखा है, और यहाँ पे मोंगो URL। ये आपको कहाँ से मिलेगा? अगर आपको कंपस ओपन करो, कंपस ओपन करने के बाद में ये देखो, आप ये मोंगो DB का जैसी कंपस ऑन कर लोगे, यहाँ पे एक क्लाउड डेटाबेस का URL मिल जाएगा, कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगी। इसको आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद में यहाँ पे आप पेस्ट करोगे मोंगो URL, क्योंकि हम process.env का यूज़ करेंगे इसको एक्सेस करने के लिए बेसिकली। एंड सर्वर में जाएंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कनेक्शन सर्वर फाइल है, ठीक है। मैं यहाँ पे जाऊँ app.js के अंदर, सर्वर के अंदर, तो यहाँ पे हम अपना बेसिक सा ऐप को सेटअप करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, const express will be equals to require express। ये जस्ट नथिंग है, जस्ट हमने इंपोर्ट करा है एक्सप्रेस को। इस तरीके से एक्सप्रेस को इंपोर्ट, मतलब किसी भी आपको चीज़ को इंपोर्ट करना है तो आप इस तरीके से इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट स्टेटमेंट भी यूज़ कर सकते हो, बट आपको package.json में जाके मॉड्यूल सेलेक्ट करना पड़ेगा। बट अभी के लिए जो मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अपने ऐप का नाम देना है, मैं ऐप का नाम ऐप ही दे देता हूँ, ठीक है। ऐप विल बी इक्वल्स टू एक्सप्रेस। इसको एक्सप्रेस का इंस्टेंस दे दिया हमने कि भाई ये जो हमारा ऐप है ना, ये एक्सप्रेस को यूज़ कर ले एक तरीके से, ठीक है। ये देने के बाद में ऐप.गेट करोगे आप, जैसे मतलब कि ऐप को गेट करा रहे, लिसन करा रहे एक तरीके से हम पोर्ट पे, कि अगर इस राउट पे आ जाए तो वो क्या करे, यानी होम राउट कहते हैं इसको, स्लैश यानी होम राउट, यानी अगर ये होम राउट पे आ जाए तो ये क्या करे। तो ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स दो चीज़ें लेता है बॉडी के अंदर, ठीक है। इनपुट पैरामीटर के अंदर रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। अगर ये होम राउट पे आ जाए, मतलब कि अगर हमारा ऐप जो है वो होम राउट पे आ जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा रिस्पॉन्स है ना उसके अंदर सेंड कर देंगे कि हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के दिखाता हूँ। पहले मैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देते हैं,
ठीक है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के दिखा दिया मैंने यहाँ पे कि अब अगर हमारा ऐप इस राउट पे आएगा तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ऐप डॉट जी एस प्रोसेस डॉट टी में जाओगे तो यहाँ पे पोर्ट है और मोंगो का URL है। इसको कैसे एक्सेस करते हैं मैं आपको ये भी बताऊँगा। ठीक है, सर्वर में जाएंगे एंड इसके बाद में जैसे आप इस पोर्ट को लिसन करा दोगे अपने ऐप राउट पे, तो यहाँ पे मैं एक स्टेट वेरिएबल बना लेता हूँ पोर्ट नाम से। ठीक है, अब इसको कैसे एक्सेस करना है, आपको process.env प्रोसेस लगाना है। प्रोसेस के बाद में हमारी जो भी env फाइल है, ये देखो सजेशन में भी आ गया, जो भी env फाइल है हमारी, उसके अंदर जो भी हमें चीज़ एक्सेस करनी है, सपोज दैट मेरे को पोर्ट एक्सेस करना है, यहाँ पे आप देखो पोर्ट आ चुका है। इसके अंदर दो चीज़ें हमें अभी के लिए पोर्ट एक्सेस करना है। तो ये जैसा आपने कैपिटल में लिखा तो कैपिटल को कॉपी कर लेना, आपको कैपिटल में ही लिखना है। ठीक है, इसको आपको पेस्ट कर देना है कि भाई प्रोसेस के env के अंदर से पोर्ट ले लो, जो भी हमारा पोर्ट है। ठीक है, अगर वो ना चले, अगर ये पोर्ट ना चले तो तुम 4000 कुछ पोर्ट पे चला देता हूँ सपोज दैट मैं इसको। अगर ये पोर्ट पे ना चले जो भी हमने env के अंदर दे रखा है, तो ये इस पोर्ट पे चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट नथिंग हमने और ऑपरेटर का यूज़ करा है यहाँ पे कि अगर ये पोर्ट पे ना चले तो इस पोर्ट पे चल जाए। एंड उसके बाद में ये लिसन कमांड देनी पड़ती है हमें कि अगर हमारे ऐप को स्टार्ट करना है, एक तरीके से स्टार्ट मान लो आप, स्टार्ट कमांड होती है ये। ठीक है, अगर ऐप को हमें स्टार्ट करना है किस पे, यानी हमने जो ये स्टेट वेरिएबल बनाया था ये यहाँ पे आ जाएगा। इसके अंदर यहाँ से इस स्टेट वेरिएबल ने क्या करा है, जो भी हमारा env फाइल से पोर्ट ले लिया और जो पोर्ट है वो इस पोर्ट वाले इसके अंदर स्टेट वेरिएबल के अंदर आ गया और इसने हमने ऐप को स्टार्ट कर दिया इस पोर्ट पे। ठीक है, जो भी हमें पोर्ट मिला है process.env से, ये दो चीज़ें लेता है। अगर आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डालना हो तो डाल देना, बट कोई नीडेड नहीं है अभी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स की, तो हम खाली इसको मेक एरो फंक्शन बना रहे हैं सिंपल सा। ठीक है, इसको एरो फंक्शन बनाने के बाद में यहाँ पे मैं console.log प्रिंट करा दूंगा। अगर हमारा पोर्ट जो है वो चल गया, मतलब कि अगर हमारा ऐप जो है वो चल गया, तो यहाँ पे आप क्या प्रिंट कराना चाहते हो, तो मैं बैकटिक्स का यूज़ करूँगा। सर्वर इज़ रनिंग ऑन द पोर्ट, और $साइन का यूज़ करके आप लोग एक्सेस कर सकते हो प्रॉपर्टी को कि भाई हमारा सर्वर जो है इस पोर्ट पे रन कर रहा है। तो यहाँ पे मैं पोर्ट ही लिख दूंगा कि अभी जो भी सर्वर, सपोज दैट हमारा सर्वर अभी process.env में मैंने यहाँ पे 3008 दे रखा है। ठीक है, तो अगर हमारा पोर्ट जो है वो इस राउट पे रन करेगा तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे इस पोर्ट का नाम भी दे देगा। ठीक है, कि भाई सर्वर इज़ रनिंग ऑन 3008 पोर्ट। इसको मैं हटाता हूँ, ऑन द पोर्ट। ठीक है, अगर मैं सेव करूँ यहाँ पे और console.log, ओके यहाँ पे एक एरर है, console कैपिटल है, console.log सेव करूँगा इसको। यहाँ पे अब आप देखो हमारा सर्वर जो है अभी 4002 पोर्ट पे रन है, मतलब कि अभी जो इसके अंदर 3008 पोर्ट है ना, वो अभी कहीं पे बिजी है, मतलब उस पोर्ट पे कुछ और एप्लीकेशन रन हो रहा है इस टाइम पे। तो इसलिए अगर इस पोर्ट पे नहीं चला तो इसलिए मैंने और ऑपरेटर लगा दिया। अगर आप और ऑपरेटर नहीं लगाते तो आपका एप्लीकेशन नहीं चलता, क्योंकि आपका जो 3008 पोर्ट है वो ऑलरेडी बिजी है। ठीक है, अगर वो नहीं बिजी होगा तो ये 3008 पोर्ट पे चल जाएगा, अदरवाइज जो है 402 पोर्ट पे चल रहा है ये पोर्ट पे। अगर मैं इसको सेव करूँ और यहाँ पे मैं अगर क्रोम पे जाऊँ, यहाँ पे अगर आप सर्च करोगे लोकल होस्ट जो भी 4002 वाला पोर्ट है से अगर मैं रन करूँ, तो ये देखो हेलो वर्ल्ड इधर प्रिंट होके आ गया। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड कहाँ से आया, यानी ऐप जो हमारा मेन राउट है ना, इस पर हमने रिस्पॉन्स सेंड कर दिया कि अगर तुम होम पेज पे आ जाओ तो तुम रिस्पॉन्स में ये सेंड कर देना रिस्पॉन्स पे बेसिकली। ठीक है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ये सिंपल सा करा है। तो अब एक बार देख लेते हैं डेटाबेस कनेक्शन कैसे करना है हमें। ठीक है, डेटाबेस का कनेक्शन कर लेते हैं। डेटाबेस के अंदर मैंने एक फ़ाइल बना रखी है db.js नाम से। ठीक है, आपको वो एक्सेस कर लेनी है। यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेनी है आपको db.js, जहाँ पे आप अपना डेटाबेस का कनेक्शन स्टेबलाइज करोगे। ठीक है, तो डेटाबेस जो है हम मोंगूस का यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मोंगूस को हमें इंस्टॉल कर लेना है। यहाँ पे आप लोग जाओ तो यहाँ पे नीडी डिपेंडेंसीज जो है वो आपको इंस्टॉल कर लेनी है, एक्सप्रेस mongoose.env। ठीक है, एवरीथिंग डिपेंडेंसीज आपको इंस्टॉल कर लेनी है। एंड उसके बाद में ये मोंगूस को इंस्टेंस ले लेना है, जैसे आपने एक्सप्रेस को रिक्वायर करा था ऐसे ही मोंगूस को रिक्वायर कर लेना है आपको। ठीक है, मोंगूस का जो कलर चेंज हो जाएगा अगर आपने इंस्टॉल कर रखा होगा, अगर नहीं कर रखा होगा तो ये वैसे ही रहेगा ब्लू कलर में ही। ठीक है, तो आपको मेक श्योर करना है इंस्टॉल कर लेना अपने टर्मिनल के अंदर। यहाँ पे मोंगूस को हमने रिक्वायर कर लिया। ठीक है, एंड यहाँ पे आप किस नाम से अपने डेटाबेस को किस नाम से कम बनाना चाहते हो, तो मैं यहाँ कनेक्ट डीबी के नाम से बनाना चाहता हूँ। सपोज दैट स्टेट वेरिएबल का नाम मैंने कनेक्ट डीबी रखा है। इसको एसिंग फंक्शन बनाते क्योंकि डेटाबेस कॉल कर रहे हैं। आप यहाँ पे डॉट देन मेथड भी यूज़ कर सकते हो रिजॉल्व करने के लिए, बट जो है ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर इसके अंदर हम लेंगे तो ये बेटर एरर हैंडलिंग करता है। ठीक है, कैच एरर, तो ये ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर इसलिए लिया है क्योंकि एरर हैंडलिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टेट वेरिएबल बनाऊंगा कनेक्शन नाम से। सपोज दैट कनेक्शन नाम से मैंने एक
यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल बना लिया मैंने कनेक्शन नाम से। अगर यहाँ पे एसिंक यूज़ करा तो एसिंक के साथ में ऑब्वियस सी बात है अवेट भी यूज़ करना पड़ेगा। एंड मोंगूज का कनेक्ट मेथड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, मोंगूज डॉट कनेक्ट। अगर आप लिखोगे मोंगूज डॉट कनेक्ट तो यहाँ पे मोंगूज डॉट कनेक्ट मेथड शो कर देगा। सेम जैसे हमने प्रोसेस डॉट ई से हमने पोर्ट को एक्सेस किया था, वैसे ही हम प्रोसेस डॉट ई से यहाँ पे जो भी मोंगो का URL है ये इसको एक्सेस करेंगे। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ। कॉपी करने के बाद में जो भी हमारा सर्वर है डेटाबेस है, यहाँ पे मैं डॉट डाल के इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, जो भी हमारा मोंगो का URL है। कोमा दे के आपको 2 नीडेड टोपोलॉजीज डालनी है इसके अंदर, ठीक है, वो नीडेड होती है। अगर आप नहीं डालोगे तो आपको ये पोर्ट चलेगा नहीं। यूज़ न्यू URL पार्सर, इसको आपको ट्रू सेट कर देना है। ये 2 चीज़ों को आपको हमेशा जब भी आप डेटाबेस का कनेक्शन स्टेबलाइज करोगे तो आपको ये नीडेड जो है ये 2 टोपोलॉजीज आपको ट्रू सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। यूज़ दूसरी है यूज़ यूनिफाइड टोपोलॉजीज, ठीक है, इसको भी आपको ट्रू सेट कर देना है। इन दोनों को ट्रू सेट करने के बाद में यहाँ पे जैसे अब आपका डेटाबेस कनेक्शन हो जाए तो आपको क्या प्रिंट कराना है कंसोल में, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल लॉग, ठीक है, कि भाई मोंगो DB कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। डॉलर का साइन लगाएंगे यहाँ पे। जैसे मैंने अभी पोर्ट में बताया था आप पोर्ट किस तरह एक्सेस कर सकते हो, ऐसे ही डॉलर में यहाँ पे मैं कनेक्शन का यूज़ करूँगा, ठीक है। ये जो कनेक्शन है हमारा ये, ठीक है, इसका यूज़ करूँगा। कनेक्शन में जो भी हमारे कनेक्शन का जो भी होस्ट होगा वो मैं यहाँ पे इसके साथ में प्रिंट करा दूँगा, ठीक है। कनेक्शन के साथ में जो भी कनेक्शन का होस्ट होगा, मतलब कि यहाँ पे जो होस्ट होगा यहाँ पे लोकल होस्ट लिखा आ जाएगा, ठीक है, एक तरीके से ये कह रहे हैं। अभी अब मैं डेटाबेस कनेक्ट करूँगा तो आपको समझ आ जाएगा कि ये जो है कनेक्टेड स्ट्रिंग ये क्या करती है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट लाइन पे जाए तो यहाँ पे एरर हैंडलिंग है, ठीक है, कैच एरर हैंडलिंग करने के लिए यहाँ पे सिंपल हम कंसोल डॉट एरर का यूज़ करेंगे। कंसोल डॉट एरर की मोंगो DB कनेक्शन एरर लिख देता हूँ मैं, मोंगो DB कनेक्शन एरर। इसको भी बैकटिक्स में ले लेते हैं, बैकटिक्स में ले लेता हूँ। बैकटिक्स में लेने के बाद में यहाँ पे आपको डॉलर साइन का यूज़ कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे डॉलर साइन का यूज़ करके यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूंगा एरर का, जो भी एरर आएगा ना, एरर में जो भी मैसेज आएगा वो मैंने प्रिंट करा दिया। अगर कोई एरर आता है इसके अंदर तो, ठीक है, अगर इसके अंदर कोई एरर आता है तो हमें कनेक्शन DB है ना, अब इसको यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर आप ये चाहो तो यहाँ से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। ये देखो एक्सपोर्ट हो गया यहाँ से भी, बट जो बेटर वे होता है एक्सपोर्ट करने का वो ये भी एक तरीका ये भी होता है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट विल बी इज इक्वल्स टू जो भी हमारा कनेक्शन DB है, ठीक है। एक तरीका ये भी होता है एक्सपोर्ट करने का, इस तरीके से भी एक्सपोर्ट कर सकते हो आप लोग। तो एक्सपोर्ट करने के बाद जब हम सर्वर में चलते हैं एंड यहाँ पे सर्वर के अंदर मैं यहाँ पे अब अपना वो जो डेटाबेस कनेक्शन है वो यहाँ पे इंपोर्ट करके अब उसको रन करा दूँगा। सो भी यहाँ पे आने के बाद में सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा मोंगोज को, जो भी हमने वहाँ से एक्सपोर्ट करा है यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम डेटाबेस को यूज़ कर सकें, ठीक है। इसके लिए जो हमने नाम बनाया था कनेक्ट DB विल बी इक्वल्स टू रिक्वायर, यानी रिक्वायर यहाँ से इंपोर्ट करने के लिए होता है, ठीक है। और डॉट स्लैश से आप बैक जा सकते हो, ठीक है। ये जैसे डॉट स्लैश करा तो ये डेटाबेस आ गया, मैं डेटाबेस के अंदर जाऊँगा फिर वापस से स्लैश तो ये DB फाइल दिखाएगा, यानी डेटाबेस वाली फाइल, ठीक है। तो आपको इसको करने के लिए आपने यहाँ पे प्रोसेस डॉट ENV से करा ना, डॉट ENV से एक्सेस करा, तो यहाँ पे आपको रिक्वायर कर लेना डॉट ENV को भी, ठीक है। मैं यहाँ पे रिक्वायर कर लेता हूँ, रिक्वायर डॉट ENV डॉट कॉन्फिग, ठीक है। ये आपको रिक्वायर कर लेनी है डॉट ENV, इसके बिना आप सर्वर नहीं स्टार्ट कर सकते, ठीक है, क्योंकि आपने प्रोसेस डॉट ENV से एक्सेस कर रहे हो आप, तो डॉट ENV को आपको यहाँ पे रिक्वायर करना पड़ेगा जहाँ पे भी आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। अब आपको जो भी आपने कनेक्ट DB वाला फंक्शन रिक्वायर करा है इसको आपको कॉल कर देना है यहाँ पे कनेक्ट DB वाला फंक्शन। अगर जैसे कॉल करोगे तो मैं सेव करूँगा, देखो मोंगो DB कनेक्टेड सक्सेसफुली लोकल होस्ट, तो ये होस्ट बताता है कि जो है मैंने यहाँ पे डेटाबेस के अंदर मैं जाके दिखाऊँ तो यहाँ पे मैंने कनेक्शन डॉट होस्ट करा था, तो ये बताएगा कि किस तरीके का डेटाबेस है। तो यहाँ पे मतलब टाइप ऑफ होस्ट बता देगा बेसिकली, तो ये भाई लोकल होस्ट टाइप का डेटाबेस है। तो इसलिए देखो यहाँ पे मोंगो कनेक्शन हो चुका है सक्सेसफुली बिल्ड, मोंगोस का सेटअप कर लिया, ऐप को स्टार्ट लिसन करवा दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मॉडल के अंदर users.js मिलेगा जहाँ पे आपको स्कीमा बिल्ड करना होता है। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा बेसिकली अगर आप एक तरीके का स्ट्रक्चर बनवा लो लाइक अपने एप्लीकेशंस के लिए, लाइक सपोज दैट आपकी जो एप्लीकेशन है उसमें आपको रिक्वायर्ड फील्ड चाहिए नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर,
ठीक है। तो इस तरीके के फील्ड के लिए आप एक स्कीमा बिल्ड करते हो कि भाई ये जो है डिटेल ये रिक्वायर होती है, ठीक है। जो नीडेड रिक्वायर्ड डिटेल्स होती है हमारी, वो आपका स्कीमा के अंदर बिल्ड किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये जो हमें अभी जो हमारी एप्लीकेशन के बेस पे, तो हमें दो दो स्कीमा बिल्ड करने पड़ेंगे। एक तो हमारा यूज़र नेम के लिए और दूसरा पासवर्ड के लिए, ठीक है। तो स्कीमा कैसे बिल्ड करते हैं? स्कीमा को बिल्ड करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मोंगूस को आपको रिक्वायर कर लेना है। मोंगूस को रिक्वायर कर लेना है, इसको मैं हटाता हूँ, डिफ़ॉल्टली मोंगूस को रिक्वायर करने के बाद में इस तरीके का आएगा, कॉस्ट मोंगूस विल बी इक्वल्स टू रिक्वायर। मोंगूस को रिक्वायर करने के बाद में यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल ले लेना है। चले आएगा, यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल ले लेना है आपको। यहाँ पे यूज़र स्कीमा नाम दे देता हूँ, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। मैं यूज़र स्कीमा नाम दे रहा हूँ। आपको न्यू कीवर्ड का यूज़ करना है, क्योंकि आप नया एक तरीके का मोंगूस का स्कीमा बना रहे हो, तो न्यू का कीवर्ड का यूज़ करना है। मोंगूस डॉट स्कीमा आपको सर्च करोगे तो यहाँ पे आप देखो स्कीमा आ चुका है। मोंगूस के लिए स्कीमा क्रिएट कर रहे हैं, तो मोंगूस डॉट स्कीमा, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट ऑन कर लिए, ब्रैकेट के अंदर रखना है। अब इसके अंदर आपको कनेक्शंस डालने कि मतलब किस तरीके का स्कीमा बिल्ड करना चाहते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बोला कि भाई मैं यूज़र नेम के लिए एक फील्ड लेना चाहता हूँ। यूज़र नेम जो होगा वो किस टाइप का होगा, तो हमने बोल दी कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है, स्ट्रिंग, ठीक है। आप इसको रिक्वायर्ड ट्रू भी कर सकते हो, आप लोग यहाँ पे रिक्वायर्ड ट्रू भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप लोग एक स्कीमा बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही आप पासवर्ड के लिए भी बिल्ड कर सकते हो, बट मैं अभी रिक्वायर्ड ट्रू नहीं डाल रहा इसके लिए। अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, ठीक है। सेम पासवर्ड के लिए भी हम यही करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप जो नाम दो ना, वही नाम आपको वहाँ पे भी यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कैपिटल देते हो तो कैपिटल ही यूज़ करना है, ठीक है। पासवर्ड जो होगा वो भी हमारा स्ट्रिंग टाइप का ही होगा, तो मैंने पासवर्ड को भी यहाँ पे स्ट्रिंग दे दिया है, ठीक है। इसको बंद करते हैं। तो ये स्कीमा आप क्रिएट कर दिया हमने, बेसिक सा स्कीमा, ठीक है। अब एक यूज़र बना लेते हैं। यूज़र विल बी इक्वल्स टू जो भी हमारा मोंगूज होगा ना, मोंगूज के जो भी मॉडल होगा, ठीक है, मॉडल होगा मोंगूज का जो भी, उसके अंदर से हम यूज़र को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यूज़र के नाम से, एंड यूज़र के नाम से यूज़र स्कीमा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये भी जो हमारे यूज़र स्कीमा है ना, इसको हम बेसिकली एक्सपोर्ट कर रहे हैं मॉडल से, मोंगूस के मॉडल से यूज़र के नाम से। तो अब वहाँ पे एज अ रिसीव करेंगे हम यूज़र के नाम से, ना कि यूज़र स्कीमा के नाम से, ठीक है। तो बस हमने यहाँ पे इसका नाम चेंज करके यूज़र करा है और बस इसको एक्सपोर्ट करा है, ठीक है, मोंगूस का मॉडल नाम यूज़ करके बेसिकली। एंड उसके बाद में आपको जो भी मॉडल है ना, जो भी मॉड्यूल है, इसको भी आपको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूज़र के अंदर आ चुका आपका डेटा बेसिकली, ठीक है। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट का यूज़ करके आप लोग यूज़र डाल देना है, ठीक है। जो भी आपका यूज़र है ये, इसको डाल देंगे, ठीक है। अब ये डेटाबेस का नाम है, इसी से आप डेटाबेस को एक्सेस करोगे। आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से। आप इसको ऐसे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे भी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर सकते हो, बट मैं अभी इसको ऐसे नहीं कर रहा, ठीक है। ये बेटर सिंटेक्स होता है। अभी मैं इसको सेव करूँगा तो अभी आप देखो सर्वर स्टार्ट है 3008 कोड पे, एंड अभी जो मोंगो डीबी कनेक्शन है वो भी सही चल रहा है। फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, ठीक है। आगे से अब हमें ना इसके कोड लिखने से पहले, ऑथर आउट लिखने से पहले, हमें एक मिडल वेयर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिडल वेयर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। जो भी हमने ऐप बनाया ना, उसको यूज़ करवा देंगे हम, ऐप डॉट यूज़, जो भी हमारा एक्सप्रेस डॉट जेसन है, ठीक है, ऐप एक्सप्रेस डॉट जेसन। इस तरीके से मिडल वेयर ऐड होता है। आप जो है बॉडी पार्सर भी यूज़ कर सकते हो। बॉडी पार्सर कैसे यूज़ होता है? ऐप यहाँ पे बॉडी आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, बॉडी पार्सर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, बॉडी पार्सर डॉट जेसन। बट जो है एक्सप्रेस डॉट जेसन जो है वो इनबिल्ट एक्सप्रेस प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये बेटर होता है। तो मिडल वेयर क्या होता है बेसिकली? लाइक आई सिंपल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ इट। लाइक इमेजिन आप जो है एक सैंडविच बना रहे हो, ठीक है। तो वो सैंडविच बनाने के लिए आपको एक ब्रेड और फिलिंग्स की नीड है, ठीक है। तो फिलिंग्स की नीड है, तो बिफोर पुटिंग देम टुगेदर, लाइक यू माइट कि भाई इसके अंदर सम और ऐड कर लूँ, मैं वेजिटेबल्स ऐड कर लूँ, सॉसेज ऐड कर लूँ, ठीक है। तो इन एक्सप्रेस यस, लाइक सैंडविच इज़ लाइक योर वेब एप्लीकेशन बेसिकली, एंड द ब्रेड, जो ब्रेड है वो बेसिक स्ट्रक्चर है आपके जो भी कंटेंट है, ठीक है, मेन कंटेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका, ठीक है। तो मिडल वेयर की भाई मैं ना, मिडल वेयर इज़ लाइक कि भाई मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स जो कि आप ऐड कर रहे हो अपने ब्रेड के अंदर, ठीक है। मिडल वेयर इज़ लाइक दैट। सो एग्जाम्पल के ले ले तो यू, अगर जो है आपको चेक करना है कि अपनी वेबसाइट पे कि कौन लॉगिन है, ठीक है। तो एक अगर मान लो एक बंदा है वो सीक्रेट पेज पे आपको चले जाता है,
तो यहाँ पे मिडलवेयर काम आता है बेसिकली कि इट इज़ लाइक कि भाई लिटिल चेक स्टेशन हो गया एक तरीके से, जो कि चेक करेगा कि हाँ भाई ये यूज़र जो है ऑथराइज्ड है। अगर ये यूज़र ऑथराइज्ड होगा तो इट्स ग्रेट, ठीक है, तो वो उसको एक्सेस दे देगा। देन अगर उसके बाद में क्या कहते हैं, अगर वो नहीं होगा एक तरीके से ऑथराइज नहीं होगा यूज़र, ठीक है, तो मिडलवेयर चेक करेगा उसको, और अगर वो नहीं होगा तो उसको लॉगिन पेज पे रीडायरेक्ट कर देगा, ठीक है। तो मिडलवेयर इज लाइक एडिंग सम काइंड ऑफ स्पाइसीज इन योर ब्रेड बेसिकली। इट्स टूल्स की एक्स्ट्रा स्टेप्स, बेसिकली ये एक्स्ट्रा स्टेप्स है मेक योर वेबसाइट मोर सिक्योर एंड मोर वैल्यूएबल, मोर फंक्शनल, ठीक है। तो मिडलवेयर जो है इसलिए यूज़ किया जाता है। तो अभी चलते हैं ऑथ राउट लिखने के लिए। यहाँ पे ऑथ राउट लिखने के लिए हमें दो कंट्रोलर की नीड पड़ेगी। एक तो लॉगिन राउट लिखना पड़ेगा, दूसरा हमें साइन अप राउट लिखना पड़ेगा। दो राउट लिखना पड़ेंगे, ठीक है। तो ये दोनों राउट लिखने पड़ेंगे अभी हमें। तो कंट्रोलर राउट यहाँ पे लिखते हैं, इसको हटा देता हूँ मैं अभी के लिए। तो तीन चीज़ें हमें पहले तो नीडेड चाहिए ही चाहिए होंगी। एक तो एक्सप्रेस का इंस्टेंस लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पे एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लेते हैं। दिस इक्वल्स टू रिक्वायर कर लेना है आपको एक्सप्रेस को रिक्वायर करने के बाद में यहाँ पे बी क्रिप्ट को एक्वायर कर लेना है। BCRYPT नाम है इसका। बी क्रिप्ट विल बी इक्वल्स टू रिक्वायर, आपको इंस्टॉल कर लेना है टर्मिनल के अंदर, REQU रिक्वायर। इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ, इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। तो ये इंस्टॉल हो रहा है, देखो यहाँ पे आपके package.json में चेक कर लेना है। जैसे इंस्टॉल हो मैं package.json में चेक कर लूँगा कि इंस्टॉल हुआ है नहीं हुआ। package.json में जाओगे तो अभी देखो बी क्रिप्ट आ चुका है, ठीक है, कॉपी कर लेना। एंड राउट में जाओगे, यहाँ पे अब आप बी लिखोगे, इसको मैं हटा देता हूँ, BC। अब ये देखो बी क्रिप्ट के लिए सजेशन दे दिया इसने, ठीक है। तो बी क्रिप्ट को आपने ले लेना है। अब यहाँ पे यूज़र बुला लेंगे हम। यूज़र क्या है, यूज़र विल बी इक्वल्स टू रिक्वायर। मैं बताता हूँ आपको यूज़र क्या है। यूज़र के नाम से हमने एक्सपोर्ट करा था डेटाबेस में स्कीमा को, एक्सप्रेस नहीं, जो भी हमारा डॉट स्लैश जो भी हमारा मॉडल्स है, मॉडल्स के अंदर में जो भी हमारा यूज़र पड़ा है स्लैश यूज़र्स, ठीक है। मॉडल के अंदर यूज़र में हमने स्कीमा के अंदर यूज़र नाम से यूज़र स्कीमा को एक्सपोर्ट करा था। तो यहीं पे वही हम इंपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको इंपोर्ट कर लेना है सिंपल, और एक राउटर सेट कर देना। राउटर सेट करना होता है आपको यहाँ पे, अगर आप राउट्स यूज़ कर रहे हो, मतलब कि राउट्स मतलब कि अगर स्लैश साइन अप एंड पॉइंट बनाओगे, स्लैश लॉग इन एंड पॉइंट बनाओगे, ठीक है, तो वो बेसिकली यही होता है। जैसे आपको सिंपल एग्जांपल दूँ मैं यहाँ पे, राउट्स क्या होते हैं, ठीक है। राउट्स बेसिकली अगर आप किसी भी वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पे सपोज दैट मैं अभी वेबसाइट पे कोई भी वेबसाइट पे चले जाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं रेज़र पे की वेबसाइट पे चले गया, रेज़र पे पेमेंट लिखूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब मैं इस वाली वेबसाइट पे जाऊँगा, तो यहाँ पे एक सेकेंड, टेलविंड की वेबसाइट पे चले जाऊँगा मैं, टेलविंड CSS, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये होते हैं राउट्स। टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन की गाइड में वीट जो है ये राउट्स होते हैं बेसिकली। तो इसलिए हम जो एंड पॉइंट बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं, यहाँ पे हम साइन अप का राउट बनाएंगे और लॉगिन का राउट बनाएंगे। तो इसलिए राउटर जो है हमें एक्सप्रेस का इंस्टेंस दिलवाना पड़ेगा राउटर को, ठीक है। हमने यहीं पे ये करा है। तो अभी साइन अप का राउट बना लेते हैं पहले, लॉगिन का राउट बाद में बनाएंगे, पहले साइन अप का राउट बना लेते हैं, ठीक है। साइन अप का राउट बना लेते हैं। तो जो भी हमारा राउटर होगा ना, ये हमने जो बनाया है राउटर पे पोस्ट रिक्वेस्ट मीन्स कि हम डेटा सेंड करेंगे रिक्वेस्ट की बॉडी में से, ठीक है। अब हमें बताना है कि कौन से राउट पे आप सेंड करोगे। हमने बोल दिया कि साइन अप राउट पे सेंड करेंगे डेटा को, ठीक है। स्लैश साइन अप एंड पॉइंट रहेगा, एंड उसके बाद में यहाँ पे एक एसिंक फंक्शन बना देंगे। इसको एसिंक फंक्शन बनाने के बाद में दो चीज़ें लेता है पैरामीटर में, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ठीक है। रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेने के बाद में यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक लेंगे हम एरर हैंडलिंग के लिए। इसलिए हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, ये वाला यूज़ करा है, एसिंक सिंटैक्स यूज़ करा है, ताकि हम ट्राई कैच ब्लॉक में अच्छे तरीके से एरर हैंडलिंग कर सके, ठीक है। आप जो है डॉट देन मेथड से भी इसको रिजॉल्व कर सकते हो। बहुत पुराना भी हो गया इसलिए जो मैं नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब हम डीस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे, क्या, यूज़र नेम एंड जो पासवर्ड है जो हमें मिला है कहाँ से, रिक्वेस्ट की बॉडी में से, अब ये रिक्वेस्ट की बॉडी में से कहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड मिलेगा। अगर आप किसी भी बैकएंड टेस्टिंग एप्लीकेशन पे जाओ, सपोज दैट पोस्टमैन पे, अभी मैंने आपको सिंपल स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था इसका। अब मैं इस पोस्टमैन को अगर ओपन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर आप इसको ओपन करोगे ना, यहाँ पे देखो ये पोस्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पे देखो पोस्ट।
अब जैसे सपोज दैट मेरे को साइन अप करना है, साइन अप के लिए मैं यहाँ पे आया इस एंड पॉइंट पे, इस एंड पॉइंट पे आने के बाद बॉडी के अंदर मैंने डेटा सेंड करा है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट कुछ नहीं, ये बॉडी के अंदर से, ये जो बॉडी के अंदर से हमने वहाँ पे से डेटा रिक्वेस्ट करा, यहाँ से इसने डीस्ट्रक्चरिंग करके यूज़र नेम और पासवर्ड निकाल लिया रिक्वेस्ट की बॉडी में से, ठीक है। रिक्वेस्ट की बॉडी में से यूज़र नेम और पासवर्ड निकाल लिया। तो अब हम सॉल्ट मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सॉल्ट लिख देता हूँ मैं, सॉल्ट विल बी इज इक्वल्स टू, इसको अवेट कर लेना है। अवेट करने के बाद में, क्योंकि इसमें भी वही यूज़ होगा, बी क्रिप्ट का जो भी यहाँ पे सॉल्ट मेथड होता है, जन सॉल्ट, ये हमें उससे करने से पहले यूज़ करना पड़ता है, हैशिंग से करने से पहले यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो कितने राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी आप देना चाहते हो इसके लिए, तो मैंने 10 लिख दिया, ठीक है। तो 10 बहुत ही मतलब सिक्योर पे होता है, ठीक है, तो इसलिए हमने 10 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। एंड इसको सॉल्ट करने के बाद में मैं बताता हूँ पासवर्ड कैसे हैश करते हैं। यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल ले लेंगे, सपोज दैट मैंने हैश पासवर्ड ले लिया, हैश पासवर्ड ले लिया, हैश पासवर्ड विल बी इक्वल टू, इसको भी हमें वेट करना पड़ेगा, ठीक है। जो भी हमारा बी क्रिप्ट है ना, उसका हैश मेथड आता है, ठीक है, बी क्रिप्ट डॉट हैश आता है। यहाँ पे आपको पासवर्ड दे देना है। पासवर्ड कौन सा है, पासवर्ड यानी ये जो आपके रिक्वेस्ट की बॉडी में से आया है, ठीक है, ये पासवर्ड दे देना। और उसके बाद में यहाँ पे सॉल्ट मेथड लगा देना आपको, सॉल्ट मेथड यानी ये, ठीक है, ये सॉल्ट हो जाएगा और ये पासवर्ड को इसने हैश कर लिया, यहाँ से रिक्वेस्ट की बॉडी में से जो पासवर्ड आया था इसने उसको हैश कर दिया एंड उस पर सॉल्ट मेथड भी अप्लाई कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये पासवर्ड हैश होने के बाद में एक नया यूज़र बना लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमें साइन अप राउट बना रहे हैं तो एक न्यू यूज़र बनाना पड़ेगा ना। यूज़र विल बी इक्वल्स टू, न्यू यूज़र बना रहे हैं तो न्यू कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो भी हमारे यूज़र है, यानी ये जो स्कीमा है, अगर मैं आपको दिखाऊँ ये क्या है, यानी ये देखो यूज़र नेम और पासवर्ड वाला स्कीमा, ठीक है। यानी अब ये यूज़र जो है ना हमारा यूज़र, यानी अब ये जो हमारा यूज़र है ना, एंड इसमें जो भी यूज़र नेम है, इसके अंदर जो भी यूज़र नेम पड़ा है वो ले लेंगे एंड पासवर्ड की जगह जो हमारा हैश पासवर्ड है वो दे देंगे, ठीक है। यानी नया यूज़र जो रिटर्न करेगा ना, तो अगर हम यहाँ पे पासवर्ड लिख देते और हैश ना करते तो जो भी हमारा पासवर्ड है वही शो कर देता, ठीक है। यूज़र नेम तो करेक्ट शो करेगा जो यूज़र ने डाला है, बट पासवर्ड की जगह डेटाबेस के अंदर हमारा हैश वाला पासवर्ड जाएगा, ना कि ओरिजिनल पासवर्ड जाएगा, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर हम यूज़र नेम सेव कर रहे हैं वही वाला, बट पासवर्ड की जगह यहाँ पे हैश पासवर्ड सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हैश पासवर्ड इधर चले जाएगा। हैश जाने के बाद में आपको अवेट कर लेना है। अवेट करने के बाद में जो भी आपका ये न्यू यूज़र है ना, इसको यहाँ पे एक सेव मेथड आता है डेटाबेस का, ठीक है। अब न्यू यूज़र डॉट सेव मेथड आपको यूज़ कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे ही आप इसको यूज़ करोगे तो ये यूज़र जो है ना वो डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा बेसिकली, और कुछ भी नहीं है। एंड उसके बाद में सेव होने के बाद में सब कुछ होने के बाद में आपको रिस्पॉन्स के अंदर स्टेटस कोड दिखा देना है 200। अगर आप स्टेटस कोड में जाओ तो 200 जो एक पॉजिटिव नंबर होता है कि सब कुछ वर्किंग चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट सेंड मेथड का भी यूज़ करूँगा मैं, ठीक है, यहाँ पे कि भाई यूज़र जो है क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है, यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे मैसेज दिखा दिया मैंने, रिस्पॉन्स के अंदर सेंड कर दिया है ना। अब ये एरर केस हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पे एरर केस हैंडल करने के लिए सिंपल मैं रिस्पॉन्स के स्टेटस में 500 कोड दिखा दूंगा या इंटरनल सर्वर एरर करके, ठीक है, डॉट सेंड कर दूंगा इधर भी कि जो भी हमारा भाई एरर टू क्रिएट अ यूज़र, सपोज दैट एरर टू क्रिएट अ यूज़र। यहाँ पे भी मैंने अभी एग्जांपल इनपुट दे दिया कि अगर कुछ यूज़र में कुछ इनपुट आए, ठीक है, तो वो इस तरीके का कुछ मैसेज दिखा दे। अगर यूज़र क्रिएट हो जाए तो वो इस तरीके का मैसेज दिखा दे, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड इस तरीके से हैश हो चुका है। तो ये हो चुका है हमारा साइन अप राउट। एंड फटाफट से अब लॉगिन का राउट लिखते हैं, लॉगिन राउट लिख लेते हैं। लॉगिन राउट लिखने के लिए भी सेम ही लगेगा। यहाँ पे राउटर के ऊपर हम पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे, ठीक है, पोस्ट रिक्वेस्ट मारेंगे, बट इसका एंड पॉइंट अलग होगा। इसका एंड पॉइंट होगा लॉगिन एंड इसका एंड पॉइंट था साइन अप। यानी स्लैश लॉगिन पे जब जाएगा तो ये लॉगिन करेगा, स्लैश साइन अप पे जाएगा तो ये साइन अप करेगा, ठीक है। इसको भी एसिंग फंक्शन बना देंगे, यहाँ पे एसिंग फंक्शन बना देंगे जो कि रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स लेता है। यहाँ से रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ले लेगा, ठीक है। ट्राई कैच ब्लॉक लेंगे बेटर हैंडलिंग के लिए, एरर हैंडलिंग के लिए, कैच एरर, ठीक है, एरर हैंडलिंग कर लेंगे इससे। अब यहाँ पे सेम हम वही यूज़ करेंगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, कॉन्स्ट, यहाँ पे स्टेट वेरिएबल बना लेंगे। स्टेट वेरिएबल बनाने के बाद में जो भी यूज़र नेम सेम वही होगा जो ऊपर हुआ है, यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो हमने बनाया है, ठीक है, वो ले लेंगे हम रिक्वेस्ट की बॉडी में से। जो भी हमारे रिक्वेस्ट की बॉडी में से हम सेंड करेंगे, जो कि मैंने पोस्टमैन से एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है। अब यहाँ पे यूज़र बना लेंगे एक नया, इसको अवेट कर देंगे हम यहाँ पे, ठीक है। और जो भी हमारा यूज़र है यानी बैक एंड जो हमारा डेटाबेस है, यानी डेटाबेस में जो भी यूज़र पड़ा है ना, ठीक है,
इसके ऊपर हम एक मेथड लगाएंगे फाइंड वन। ये मेथड क्या करता है, ये बेसिकली चेक करेगा कि भाई अभी जो यूज़र नेम और पासवर्ड डाला है, वो जो डेटाबेस के अंदर जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो दोनों मैच कर रहे हैं। ये फाइंड वन मेथड क्या करेगा, बेसिकली चेक करेगा कि हमारे जो डेटाबेस के अंदर, यानी यूज़र क्या है, यूज़र हमारा डेटाबेस है, और ये यूज़र क्या है, यानी यूज़र, ये चेक करेगा यहाँ से, ठीक है, ये यूज़र नेम और पासवर्ड जो अभी यूज़र ने डाला है, ठीक है, वो सेम है, मतलब कि जो डेटाबेस के अंदर है और जो अभी आया है यूज़र नेम और पासवर्ड वो सेम है, ठीक है। तो ये फाइंड वन मेथड बेसिकली यही करता है। तो यहाँ पे चेक करेगा, तो इसके अंदर हम यूज़र नेम सेंड कर देंगे, ठीक है। यूज़र नेम से ये चेक कर लेगा कि भाई अगर यूज़र नेम जो है इसका और इसका सेम होना चाहिए तो ये करेगा, ठीक है। अगर एक कनेक्शन, एक एरर केस हैंडल कर देते हैं, अगर यूज़र नहीं है, सपोज दैट अगर यूज़र है ही नहीं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हम रिटर्न कर देंगे जो भी हमारा रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स के अंदर स्टेटस कोड दिखा देंगे, स्टेटस कोड 404 दिखा देता हूँ, सपोज दैट मैं 404 सेंड, कि भाई अगर यूज़र है ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला, तो यहाँ पे सिंपल यूज़र नॉट फाउंड, ठीक है, यूज़र नॉट फाउंड आ गया, है ना। अब यूज़र नॉट फाउंड आ गया, अब ये केस हैंडल कर लिया। अब यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है, पासवर्ड मैच के नाम से मैंने स्टेट वेरिएबल बना लिया, इसको भी अवेट करेंगे। अब पासवर्ड भी तो मैच करना पड़ेगा। अब सपोज दैट दो बंदों का यूज़र नेम जो है सेम हो गया, तो बट पासवर्ड भी तो मैच करना चाहिए ना। अब पासवर्ड तो हमने हैश कर लिया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक हैश पासवर्ड नाम का वेरिएबल लेंगे, उसको अवेट कर देंगे। जो बी क्रिप्ट है ना, बी क्रिप्ट डॉट कंपेयर मैथड आता है बी क्रिप्ट का, ठीक है, वो कंपेयर मैथड आपको यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। और इसमें आप इसके अंदर आपको पासवर्ड दे देना है, ठीक है, और जो भी यूज़र का पासवर्ड होगा ना, यूज़र डॉट पासवर्ड वो दे देना है, ठीक है। यूज़र का जो भी पासवर्ड है, यूज़र ने जो पासवर्ड डाला है और हमारे जो इसके अंदर जो पासवर्ड आया वो सेम है, ठीक है, तो ये चेक करेगा यही, है ना। तो अगर जो पासवर्ड जो सेम होगा, ठीक है, अगर जो हमने जो भी पासवर्ड डाला है ना, ये पास मैच जो बनाया हमने, ठीक है, वो सेम होगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में तो हम रिस्पॉन्स के अंदर यहाँ पे स्टेटस कोड दिखाता हूँ मैं, स्टेटस 200 एक पॉजिटिव है, ठीक है। तो यानी यूज़र में जो पासवर्ड डाला है और जो हमारे डेटाबेस के अंदर पासवर्ड है वो दोनों मैच करके, तो इस केस में हम सेंड कर देंगे कि यूज़र को भाई लॉगिन सक्सेसफुली एंड, ठीक है। अगर जो है वो नहीं होता, इसका एल्स केस लिख देते हैं, ठीक है, इसी का एल्स केस लिख दूंगा मैं यहाँ पे। अगर जो है पासवर्ड नहीं मैच करता, रिस्पॉन्स के अंदर स्टेटस दिखा देंगे 500 डॉट जेसन सेंड कर देते हैं, ठीक है, जेसन सेंड कर देते हैं, इनवैलिड पासवर्ड WORD, ठीक है। अगर जो पासवर्ड नहीं मैच करता, पासवर्ड मैच कर जाता है तो लॉगिन दे देगा, अगर पासवर्ड नहीं मैच करता तो इनवैलिड पासवर्ड करके आ जाएगा, ठीक है। अब इसको करने के बाद में एक एरर केस को हैंडल कर लेते हैं हम। यहाँ पे इस एरर केस को सिंपल हैंडल कर देंगे, रिस्पॉन्स के अंदर स्टेटस भेज देंगे 500 और डॉट सेंड कर देंगे, बस सिंपल, कि भाई एरर इन लॉगिन इन, है ना। ये एरर करने के बाद में अब यहाँ पे सिंपल इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट विल बी इक्वल्स टू राउटर, ठीक है। इस तरीके से इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट कर देंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद में ये मॉडल इसकी नीड नहीं है, इसको रिमूव कर देते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो अभी ये हो चुका है। अब ना फटाफट से ना जो सर्वर है हमारा, सर्वर के अंदर हम अपना एंड पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है, कि जो है ऐप जो है किस पे यूज़ करेगा। तो अभी फटाफट से लास्ट कनेक्शन कर लेते हैं इसके लिए, ठीक है, लास्ट स्टेप रह रहा है। तो अब आपको जो ओथ राउट है, अपने राउट है वो सेटअप करना पड़ेगा सर्वर में, ताकि वो यूज़ कर ले। तो इसके लिए हमने यहाँ पे पहले ना ओथ राउट को बुला लेते हैं, ओथ राउट्स, ठीक है, ओथ राउट विल बी इक्वल्स टू रिक्वायर, इसको भी रिक्वायर यानी इंपोर्ट कर लेंगे, ./राउट के अंदर जो भी ओथ राउट है उसको इंपोर्ट कर लो, ठीक है। उसको इंपोर्ट करने के बाद में ये जो ऐप डॉट गेट है इसको मैं अभी के लिए हटा देता हूँ, ठीक है। ऐप के ऊपर ये जो ऐप है हमारा, उसको हम चाहते हैं कि वो यूज़ करे /auth, ये एंड पॉइंट यूज़ करे, एंड जो भी वो है ओथ राउट उसको साथ में ले ले, ठीक है। ओथ राउट के अंदर क्या है, ओथ राउट के अंदर लॉगिन और साइन अप है, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे /login /signup/login है, ठीक है। अगर आप लोग HTTP रिक्वेस्ट मारते हो अगर पोस्टमैन से, ठीक है, तो आपको एंड पॉइंट क्या मिलता है, लोकल होस्ट /auth, पहले ओथ आएगा आपके यहाँ पे, ठीक है, ये /auth
और उसके बाद में जो भी आपका ओथ राउट है, अगर आप साइन अप कर रहे हो तो साइन अप राउट है, अगर आप लॉग इन कर रहे हो तो लॉग इन राउट है, ठीक है। इस तरीके से ये राउट सेटअप होंगे आपके। तो एक बारी स्टार्ट करके देख लेते हैं कि सही चल रहा है, ठीक है। तो सर्वर स्टार्ट है एंड मोंगो डीबी का कनेक्शन भी स्टेबलाइज है, तो मतलब कि ऑल कोड वर्किंग है, ठीक है। तो इस कोड का जो जिस्ट वर्जन है और मैं गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर प्रैक्टिस कर लेना। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।